وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، انسان کو پیدائشی طور پہ نہ تو فرشتہ بنایا گیا ہے اور نہ ہی شیطان. یہ عمل ہیں اور معاملات ہیں کہ جن کے ذریعے یہ فرشتوں سے بھی افضل ہو سکتا ہے، اور یہ رویے اور کردار ہیں کہ جو اسے ابلیس سے بھی بدتر بنا سکتے ہیں. فیصلہ انسان نے خود لینا ہے. رب چاہتا تو زبردستی بھی مطیع اور فرما بردار بنا سکتا تھا. سوچئے کہ اگر نماز کی پابندی، رب کی فرما برداری اور اطاعت اللہ چاہتے ہیں تو صرف ایک پوائنٹ کے اوپر بات کھڑی تھی، وہ مسجدوں میں لا سکتا تھا، قیام کروا سکتا تھا، رکوع میں جھکا سکتا تھا، وہ سجدوں میں سر ڈلوا سکتا تھا، وہ تشہد کی حالت میں دھرنے دلوا سکتا تھا. سوچئے رات کو بڑی شدید ترین نیند کے اندر جب ہمیں بول و براز کی قضائے حاجت معاملہ بنتا ہے تو کبھی کسی کو اٹھانا پڑا، وہی بچہ، وہی جوان جسے صبح فجر میں ماں باپ اٹھا کے تھک جاتے ہیں، رات کو واش روم جانے کے لیے اسے کون اٹھاتا ہے؟ جو ذات وہ ضرورت ڈال کے مجبور کر کے سوتے ہیں، واش روم لے جا کے سیٹ پہ بٹھا سکتی ہے، وہ ذات اپنے گھر بھی لا سکتی تھی، لیکن کہا نہیں، یہ بات ہم نے تیرے اختیار پہ چھوڑی ہے. تو کچھ نہیں تھا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان اپنی تاریخ اور ہسٹری اور ماضی کو دیکھ، تجھے کوئی جانتا نہیں تھا. 1973 سے پہلے عبدالرزاق ساجد کو کوئی نہیں جانتا تھا، اور آنے والی اسی ڈیٹ پہ شاید دنیا پھر نہ جانتی ہو. اللہ نے تجھے پیدا کر کے تیرے تذکرے اور تیری اصل کیا ہے؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. تو پانی کی 2 بوندوں کا مکسچر ہے، اور بنایا کس لیے ہے؟ نبتلیہ. ہم نے تجھے آزمانا ہے. اگر ریموٹ کنٹرول کر دیتے تو تیرا اعتراض ہونا تھا کہ میں تو زبردستی سب کیا کروایا گیا ہوں، میرا رائٹ اور میرا اختیار کہاں ہے؟ اللہ کہتے ہیں فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. ہم نے تجھے سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں دے دی. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ. ہم نے تجھے دونوں رستے بتا دیے ہیں، خیر کیا ہے، شر کیا ہے. اما شاکروں و اما کفورا. اب تیری مرضی ہے، مطیع بن، فرما بردار بن، یا پھر ناشکرا بن. کتاب اتار دی ہے، ہدایت نازل کر دی ہے، ٹیچر بھیج دیے ہیں، مرشد اور رہنما
तेरी तरबियत के लिए मुकर्रर कर दिए हैं, ड्यूटी लगा दी गई है। अब ये तेरा हाथ पकड़ के तुझे जबरदस्ती कुरान खींच के नहीं लाएगा। ये तेरे नफ्स का मैटर है, ये तेरे वजूद के, तेरे आज़ा और केवा हवा से खमसा के कीबोर्ड दे दिए हैं, धड़कने को दिल, समझने को दिमाग दे दिया है, रहनुमाई के लिए निसाब और समझाने के लिए उस्ताद दे दिया है, मुश्किल से मुश्किल मरहलों के अंदर बता दिया है कि करना क्या है। बाकी अब तेरी मर्जी है, जबरदस्ती हम नहीं करेंगे। तुझे प्यार से आना होगा, आ जाएगा तो फायदा तेरा है, हमारा कोई फायदा नहीं, नहीं आएगा तो नुकसान तेरा है, हमारा कोई नहीं। हम इंशाअल्लाह आज इंसानी नफ्स के ऊपर किताबुल्लाह ने जो तसव्वुर दिया है उसमें अपने आप को देखेंगे और आईने में खड़ा करेंगे और पढ़ेंगे कि आज दुनिया में चारों तरफ मसाइल हैं, जंगो जदल है, निज़ा है, इंतशार और इफ्तिराक है, नफ्सा नफ्सी है। हर बंदा जो है वो किसी न किसी मुश्किल में खुद को देख रहा है, निकलने के लिए हाथ पांव मार रहा है। समंदर में डूबने वाले तो शायद होते खाते हुए बाहर निकल आए, लेकिन जिन हालात में हम फंसे हुए हैं, नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो गए हैं, एक एक घर का एक एक फर्द कहीं ना कहीं किसी उलझन में फंसा हुआ है। सुलझन है कि वो मिल ही नहीं रही, तो क्या किया जाए? जरूरी है कि पहले बंदा खुद को समझे। इस हवाले से गुजारिश ये है कि मैं किताबुल्लाह की औराक खोलने से पहले अपने नफ्स को देखना चाहता हूं। अलिफ से लेके या तलक जितने हुरूफ हैं, ये बचपन में बच्चों को पढ़ाए जाते हैं और इसका कोई मकसद होता है। आप देखिए हमारे दौर में अलिफ से अनार था, बे से बकरी थी, पे से पंखा था, ते से तख्ती थी। गिनते गिनते जितनी भी चीजें थी, मादी थी, दुनियावी थी, आरजी थी। लेकिन जब हम दीनी मदारिस का रुख करते हैं तो आप यकीन करें कि एक अलिफ से लफ्ज़े अल्लाह ने अलिफ अनार से लेके ये यक्के तलक जितनी भी चीजें थी उनके खालिक से सिर्फ अलिफ ने मिलवाया था। बात तसव्वुर की है, बात सोच की है, रुझान की है, तरजीहात की है कि आप तरजीह किसको दे रहे हैं, सिर्फ दुनिया, या दुनिया का रब ने वादा किया है वो लुकमा खाए बगैर सुलाता नहीं है, जो लिख दिया है, और जो लिखा नहीं है सारा दिन भाग दौड़ कर ले वो मिलने वाला नहीं है, फैसला है उसका। लेकिन दुनिया वो सबको देने का वादा करता है, दीन और रब की कुर्बतें और मोहब्बतें सिर्फ चाहने वालों को देता है और उसके रास्ते दिखाता है, जराए वसाइल मुहैया करता है। हमने उसमें क्या चुना, अलिफ अनार या अलिफ अल्लाह, बे से बकरी और उसका गोश्त, या फिर उसके सिरी पाए, या बे से रब की बरकत और कायनात की हर चीज जिसमें अल्लाह की बरकत शामिल हो जाए। वो चाहे तो रेत के टीलों में बरकत दे दे, वो चाहे तो खुश्क जो है वो तने के अंदर ताजगी पैदा कर दे, वो किसी पुख्ता सड़क और फुटपाथ के ऊपर दो पक्की ईंटों के अंदर में से जिंदगी को बरकत दे करके उसको फल लगा दे, ये मर्जी उसकी है। मगर आपने अपने नफ्स को फिट कहां किया है? आपका जाविया निगाह क्या है? आप गिलास में पानी है आधा आधा भरा हुआ देख रहे हैं या आधा खाली देख रहे हैं? आप सिर्फ महदूद और कोता नजरी से एक लेवल तलक सिर्फ दुनिया तलक देख रहे हैं, या इसके आगे भी जितने जहान हैं आप उन जहानों को देख रहे हैं? आपने अपने नफ्स को कहां फिट किया है? भाइयों, एक मिसाल से मैं आगे बढ़ता हूं, नफ्स की हुरूफ तहज्जी की तरफ आता हूं। मैं
अगर ये फैसला कर लूं कि मुझे आज सारा दिन सोना है, कोई नमाज नहीं पढ़नी, मुझे कोई नहीं जगाए, मैंने भरपूर नाश्ता कर लिया, अब मुझे सोना है, मैं फजर से लेकर जोहर तलक, जोहर से असर, असर से मगरब ईशा मैं फिर भी नहीं उठ रहा, मैं फिर पूरी रात सोता हूं, 24 घंटे सो के उठ के भी मैंने इस नफ्स को फिर जो है वो जमाइयां लेते देखा है। और अगर मैं ये अपने नफ्स को समझा दूं कि देख काम बड़ा अहम है, ये दिन फिर हाथ नहीं आने, ये कटाई के दिन है, गंदम महंगी हो गई है, अब 1 लाख में शायद 25 मन भी ना मिले, यही अय्याम है, कटाई कर ले, दिन को भी काट रात को भी काट, मजदूरियां छोड़ दे, दिहाड़ियां छोड़ दे, निकल, मौसम हाथ से निकल रहा है, सीजन है। अगर ये बंदा दिन रात भी जागे और मेहनत करे तो ये थकता नहीं है। मैंने अपनी इन आंखों से खेतों में लोगों को काम करते और कटाई करते देखा। आप फैसला कर लें कि मैंने 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा सोना है, ये नफ्स फिर भी आपका साथ देगा, हशाश बशाश रहेगा, फिट रहेगा, चलेगा। ये आपने उसे रखा कहां है, ये असल चीज है। आइए, अल्लाह ने हर इंसान के नफ्स में 2 पहलू रखे हैं। जितनी भी चीजें इस दुनिया में सोची जा सकती है नफ्स के बारे में, उसको जरा चेक करें। मैं अगर नफ्स की अलिफ की तरफ बढ़ूं तो मेरे रब ने इस नफ्स के अंदर इबलीस जैसा गुरूर भी रखा है। चेक कर लें। आप तकब्बुर में आए, अकड़े, ये आपका साथ देगा, ये फूलेगा, ये फूलेगा, अकड़ में आएगा। आप छोटे से बच्चे के नफ्स को फिट कर दें, फिक्स करें, कहां करते हैं? माजरत के साथ कौम या बिरादरी का ताल्लुक नहीं है। मैंने एक बच्चे को लड़ते हुए देखा एक बड़े के साथ। बाप ने उस बच्चे को यह कहने की बजाय कि बेटा वो बड़ा था, आपको शर्म आनी चाहिए थी, तेरा बुजुर्ग था, उस बच्चे को बाप कह रहा है ना, राना है ना तू, अभी तूने थोड़ा करा है, इससे ज्यादा करता तो मेरे यहां ठंडक पड़ती। हम अपने बच्चों को फिक्स करते हैं। तू जाट है, तू खान है, तूने हार नहीं माननी, तू कमी थोड़ा है। तो यहां जहां फिक्स किया जाएगा, इसे इबलीस का तकब्बुर दे दें तो ये एक्सेप्ट करता है, इसे फरिश्तों की तरह झुका दें तो ये सजदा भी करता है, सर बसुजूद भी होता है। इसकी अलिफ में यह भी है कि ये अबू जहल सा जाहिल भी बन जाता है और ये अली जैसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आलिम भी बन जाता है। बनाइए, इसे जाहिल रखिए, रहेगा, आलिम बनाइए, बनेगा। ये उल्लू जैसा ज़ईफुल बसर भी है, शाहीन जैसा तेज नजर भी है। अब आपने फाइनल करना है इसे कहां रखना है। कल को आप रोएंगे जी बड़े नफ्सियाती मसले हैं, मैं डिप्रेशन में हूं, मैं ज़हनी तौर पे बड़ा थक गया हूं, मैं कमजोर हूं, मैं घबरा गया हूं, मेरे बीवी बच्चे, मेरा घर, मेरा कारोबार, मेरा मुल्क मुझे अब जीने नहीं देता। ये यहां का मामला है, आप इसे कहां रख रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बदतरीन हालात में फैसला लिया था कि मैंने पाकिस्तान आना है और मैं इस पे शुक्र कर रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। उस फैसले में 98 से लेके पिछली सदी के 2 साल, इस सदी के 23 साल, इन 25 सालों में मेरे रब का शुक्र है कि ज़हनी तौर पे कोई परेशानी नहीं आई, क्योंकि मैंने इसे अपनी जन्मभूमि, अपनी मट्टी, अपनी जिंदगी और रब का इख्तियार, रब चाहता तो मुझे कहीं भी पैदा कर सकता था, यहां पैदा किया है तो मकसद है। तो कितने सारे लोग हैं जो इन सालों के अंदर घबरा के, यहां कुछ नहीं बचा, हालात ठीक नहीं है, खुदकुशियां कर गए, बीवी बच्चों के साथ यहां छोड़ गए, और वतने अजीज के बारे में एक मुस्बत जुमला भी मैंने उनके मुंह से नहीं सुना। आपका नफ्स है, नफ्सियाती मसाइल का शिकार है, लेकिन आपने नफ्स रखा कहां है? इसे गंदे नाले पे रखा है या बाग में जगह दी है?
उस बदबूदार माहौल पे मुतमिन हो गए हैं, या आपने खुशबू की तलाश करी है, नहीं मिली, अगला कदम, अगला स्टेप आते आते शिकारी सारा दिन कुंडी लगा के मछली के लिए बैठता है इस उम्मीद पे कि इंशाल्लाह मिलेगा। रब कहते हैं मायूस ना हो, ला तकनतु मिर रहमतिल्लाह। जिस रब ने तेरा नफ्स बनाया है, तखलीक फरमाई है, तहसीन कर दी है, कसमें उठा के कहा है वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन। इंसान तेरी तखलीक की है, बाकमाल की है, तुझसे बढ़ के कुछ भी खूबसूरत नहीं बनाया। तेरा किवाम, तेरा अंजर पंजर, तेरा हड गड, तेरे जोड़ जोड़, तेरा एक एक अंग मैंने किसी और मखलूक में रखा ही नहीं है जो तुझे दे दिया है। अल्लाह ये देखे क्या किया है, वलकद कर्रमना बनी आदम, हमने तेरी इज्जतें डाल दी हैं, पूरी मखलूक तेरे ताबे कर दी है। हुवल्लज़ी खालक़ लकुम मा फिल अर्द जमिया, इंसान जो कुछ है वो मैंने तेरे लिए बनाया है। अल्लाह ये मेरे लिए तो बन गया है। इस तकरीम और इस तहसीन को मजीद आप क्या कहना चाहते हैं? अल्लाह कहते हैं वफ़द्दलनाहुम अला कतीर मिम्मन खलकना तफ़दीला, हमने कायनात में जो कुछ बनाया है अफजल तरीन तुम्हें बनाया है। अल्लाह अब क्या है, छोटे छोटे मसले हैं, हम इसके लिए आपकी तालीम करते हैं। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, जिस मसले का तुझे पता ना हो, परेशानी आए, हम आसमान से उस परेशानी का हल तालीम के तौर पे बतौर निसाब, बतौर किताब, और इसको पढ़ाने वाली जनाब आपको मुर्शिद और रहनुमा के तौर पे देते हैं। आपने ली, सुधारा, कभी पूछा मसला क्या है और हल क्या है? ये सारी चीजें कहने के बाद अल्लाह कहते हैं ये दुनिया ख्वाहिशात की जगह है, आरज़ुओं की जगह है, आमाल की जगह है, लेकिन अमल से फरिश्तों से अफजल हो सकता है, अमल से इबलीस से बदतर हो सकता है। फैसला तूने लेना है कि कहां जाना है। कयामत के दिन तो फिर मुआमला कुछ और है। मैं तो चाहता हूं कि तकरीम के साथ तुझे जन्नतों का घर दूं। अब ये तेरी मर्जी है, जहन्नम चुनता है या जन्नत चुनता है। इस हवाले से अलिफ पे अगर आप ठहरे हैं तो जरा नफ्स की बा पढ़िए। भेड़िए जैसा चालाक भी बनाना चाहे तो बन जाएगा, मक्कारियां करेगा, अय्यारियां करेगा, अटैक करेगा, चीर फाड़ करेगा। आप अपने आप को कातिल और खूनी बना दें, इस नफ्स के पंजे तेज कर दें, यह किसी भी जंगली जानवर से बढ़ के आगे मुकैयद कर दिया सांपों को, यह कहकर सपेरों ने, ये इंसानों को इंसानों से डसवाने का मौसम है। डसेगा। सांप में वो जहर कहां जो इंसान उगलते हैं, नहीं है जंगली जानवरों में वो शिद्दत जो तेरे मेरे नफ्स में है। फिट कहां करेगा? तू चाहे तो इसको भेड़ जैसा भोला बना दे, भेड़िए जैसा चालाक बना दे। अल्लाह ने तेरे हाथ में दिया है, सामान मौजूद है, सारी कुछ दुनिया करती जा रही है, सब कुछ करने के बावजूद भी तू चुप हो जाता है। जा यार, तेरा रब भला करे। मैं बदला ले सकता था, तुझे बता सकता था। ये जो जुमले बोल रहा है ना कि तेनू पता नहीं मैं कौन हाँ, मैं बता सकता था कि मैं कौन हूं, लेकिन जा यार, तेरा भला करे। मेरे मां बाप ने मेरी ये तरबियत नहीं करी, मेरे रब ने मुझे नहीं बताया, मेरे मुर्शिद ने मुझे कहा है ला तग़ज़ब, रेस नहीं होना, गुस्से में नहीं आना, चल ठंडा हो जा। गले में रस्सा डाल के तू मेरे मुर्शिद की आंखें बाहर निकाल दे। मेरे मुर्शिद ने फिर भी कहा है, हालांकि उसी वक्त ये हाथ काटे जा सकते थे, ये जोड़ तोड़े जा सकते थे, आंखें निकाली जा सकती थी। मुरीद बड़े फर्माबरदार थे, अबरू के इशारे पे सब हो सकता था। पेशाब करने आया है, नफ्स काटा जा सकता था जनाब, लेकिन मेरे मुर्शिद ने जो नफ्सियात हमें दी थी, नहीं, देख के भी आवाज आई मह मह। और क्या कर रहा है? मेरे बाबू ने कहा डांटो नहीं यार, झटके से ना पेशाब रुक जाएगा। ला तुज़रिमू अलैहि बौला, उसे नहीं पता, तुम्हें तो पता है, नहीं करो उसके साथ ऐसे। चलो पानी लेके आओ, जो इसने पेशाब किया तुम धो, उससे नहीं धुलवाया। और उसे पास बुला के कितनी मोहब्बतों से
यार ताकत का मालिक हो के मुरीद हूं, जम्मे गफीर हो, लाओ लश्कर हो, ताकत और कुव्वत हो, हैबत इतनी हो कि नुसिर तो बिर्रो भी मसीरत अशार, 1 महीने का पैदल सफर मेरे मुर्शिद निकले तो धाक बैठ जाए। कहीं तो समझना पड़ेगा आप कहां हैं और मैं कहां हूं। दूसरा मुझे पढ़ाएगा, शायद मैं ना पढ़ूं जो मैं खुद को पढ़ा सकता हूं। और बड़ा कमाल किसी ने जुमला बोला था, किताबों में दर्ज था ही नहीं सबक जो पढ़ाया जमाने ने। जमाना तुझे जितना पढ़ाए, जितनी अच्छी ये किताब पढ़ाती है, शायद जमाना कुछ न कर पाया। मेरे इस नफ्स के अंदर अगर मैं इसकी ता देखूं तो तकब्बुर से भरपूर भी है, आजिजी से मामूर भी है। 1 की 10 मारता है, ईंट का जवाब पत्थर से भी दे सकता है। सारा कुछ पत्थर खा के भी और फरिश्ते भेजे हुए हों, फिर कहे ताइफ वालों के लिए अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। फिक्सिंग है ना कि आपने इसको किस पॉइंट पे ले। अपने भी नफ्स को आप चेक करें, तेरे मेरे में तकब्बुर कहां है। अच्छा, ये तौहीद का पहरेदार भी हो सकता है, मौत सिर्फ उस दिन आनी है जो अल्लाह ने लिखी है। ये शिरक का अलम बरदार भी हो सकता है, दोनों पहलू हैं। एक ही घर में एक ही बाप के 2 बेटे, एक की जिंदगी सारी रब के तौहीद के उलूहियत में रुबूबियत की दिफा में गुजरती है, दावत में गुजरती है, और दूसरा शिरक के अड्डे बना के बैठा है। फिक्सिंग है ना कि आपने अपने नफ्स को कहा, एक ही मां का दूध पिया, एक ही छत के नीचे पले, एक ही कारी साहब के पास कुरान पढ़ा है, एक और चले आगे बढ़ते हैं। ये तौहीद का पहरेदार शिरक का अलम बरदार है। मैं अगर नफ्स की खा को देखूं, ये साबित कदमी में पहाड़ों जैसा भी है, और फिसलने पे आए, हिलने पे आए तो सीमाब पारा देखा है आपने कभी, किसी एक जगह पर सुकून नहीं रहता। ये तो ये सीमाबी कैफियत से भी बेसबाती में आगे समरबार भी है, और अगर मैं देखूं तो नाकाम व नामुराद भी है। ये नफ्स ही है। और अगर इसकी जीम को देखूं तो ये जबर व तशद्दुद का फाइल भी है, और ये सब्र और रजा का कायल भी है। एक बंदा मारे जा रहा है, ज्यादतियां करे जा रहा है, और दूसरी तरफ सब्र, हौसला, तहम्मुल कहां है। आपने देखना है और मैंने देखना है कि मैं जबर व तशद्दुद पे ले आया हूं, कल को मुझे रब की पकड़ का पता है। जब गले में तोक डाले जाएंगे, जब हथकड़ियां लगाई जाएंगी, जब बेड़ियां डाली जाएंगी, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह सूरह दहर के अंदर ही कहा है, अल्लाह फरमाते हैं इन्ना आतदना लिल काफिरीना सलासिल व अगलालन व सईरा। क्या जानते हो, बागी बन के आओ, करो तकब्बुर, बिगड़ के आओ, नफ्सियाती मसाइल उलझने दुनिया को दे के परेशान करके आओ, क्या कर लोगे। फिरौन, नमरूद, हामान, अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, क्या करके आओगे। अल्लाह कहते हैं फिर जिस वक्त मेरी हथकड़ियां लगेंगी, गले में तौक डलवाऊंगा और आग के शोलों में जलाऊंगा, फिर तुम्हें इल्म नहीं है। और दूसरी तरफ इन्नल अबरारा यशरबून मिन कास, हमने अच्छे नफ्स वालों को जो कासे देने हैं, यशरबून पीने वाले, मिन कासिन काना मिजाजु आ काफूरा, तुम्हें पता ही नहीं कि जन्नत के काफूर का टेस्ट कैसा है, हम वो पिलवाएंगे। अल्लाह ताला ने जो समझाना था समझाया। अब अपने नफ्स की जरा चेह को देखें, चमगादड़ जैसा उल्टा भी है, सरू जैसा सीधा भी है, खा में देखूं तो खैर का वकील भी है, और दूसरा पहलू देखूं तो शर की दलील भी है, दाल में जाऊं तो दुनियादार भी है, दीनदार भी है। आप इसको दुनियादार बनाएं, बनेगा। दीन की तरफ इसका फोकस कर दे, मुंह मोड़ दे, मुड़ेगा। आप इसको देखें तो दूध जैसा सफेद भी हो जाएगा। स्याहकार नामे करवाना चाहें तो ये तलचट और काली लुक से भी स्याह हो जाएगा। इसको दिलबर और दीवाना बनाए तो वो भी बन जाएगा। इसे बेमुरब्बत और बेगाना करें तो वो भी होगा। इसको दयूस बना दे तो तैयार खड़ा है, इसे गयूर बनाए तो तब भी तैयार है। राल पे आऊं तो जर्रात जैसा बिखरा बिखरा, टूटा टूटा। और अगर दूसरा पहलू देखूं तो ये एक होके भी इब्राहिम की तरह जम जाता है,
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व रहमहुल्लाह व अकरमहुल्लाह व अलैहि सलाम, अल्लाह सारी रहमतें और करम जनाब इब्राहिम पे नाजिल फरमाए। पूरी दुनिया ने कहा था इसका DNA जला के निशान खत्म कर दो बचे ना, लेकिन क्या इब्राहिम है। आज भी ये दौर किसी बराहीम की तलाश में है। ये जहान जो है ना सनम कदा है, इसे ला इलाहा की जरूरत है। चलिए आगे देखिए, अगर जर्रात हैं राह में आइए, रात की तरह सियाहियां भी देगा, दिन सा रोशन भी बनेगा। अगर साई में चले जाओ, मैंने इसी नफ्स के अंदर जराफे जैसी शराफत भी देखी है, मैंने इसी में बंदर जैसी शरारत भी देखी। बनाए फिक्स आपने करना है, इसको कहां आपने लाना है और कहां घुमाना है। पंखे ने चलना है, आपका ऑर्डर लेना है, आपके हाथ पे ऑन किया है, ऑफ किया है, रेगुलेटर पे कहां रखा है। जनाब मजीद बढ़िए, इसमें साधु जैसी लकीर का फकीर भी है, कब्बू जैसी हिस्स तदबीर भी है, ये सुन्नत का शहदा भी है और बिदआत का रसिया भी है, ये शहद सा मीठा भी है, हंजल और कौड़ तुम्हें जैसा कड़वा भी है, ये शहादत का मुतमन्नी भी है, ये मौत के डर से घबरा के भागता भी है। बहादुर, किसी ने कहा था अश-शुजाअतु सब्रु साअ, बहादुरी जस्ट 1 सेकंड के 1000 में लम्हे का हिस्सा है। मैंने पूछा वो कैसे, तो सियानों ने बोला कि 2 कुत्ते लड़ रहे हैं, जीतेगा कौन? जो आखिरी दम तक अपनी दुम सेकंड के 1000वें हिस्से में ऊपर रखेगा ये जीतेगा, और जिसने 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में दुम पहले की नहीं तो गया नहीं। नफ्स है ना। आप कहां खड़े हैं? अली मरहब के रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किले पे, अल्लाह आपको वो कला दिखाए, वो सीन देखें। वो जनाब खालिद इब्न वलीद 9 तलवारें तोड़ के पूरी बॉडी पे जख्म खा के 3 लाख की फौज के सामने खड़े होके, जब दुश्मन के भूखे प्यासे आए हो, पर हेड इतने डॉलर यूरो रियाल उस दौर का जो भी सिक्का था, लो और चले जाओ, और कहे कि हाँ सही समझे हो, हम भूखे भी हैं प्यासे भी हैं, प्यास लगे तो खून पीते हैं। और हमें खबर मिली है कि दुनिया में सबसे टेस्टी खून रूमियों का होता है। थोड़ा थोड़ा पिला दो, मैं अपने साथियों को लेके वापस चलो जाऊंगा। तारीख लिखती है कि ऐसा मीडिया वार दुश्मन ने भी कराया है, गिराया है, वैल्यू लगाई है, मंगता समझा है, कशकोल लेने वाला, भूखा प्यासा, जजीरे से निकला हुआ, पानी खुश्क हो गया है, खाना बदोशी की जिंदगी है, भूखे प्यासे आए हो। कहा हाँ है तो ऐसे ही जैसे आपने समझा है, सही समझा है, लेकिन अगला जुमला सुनिए। तारीख लिखती है कि सिर्फ 3 दिनों के अंदर 3 लाख का लश्कर हार के वो पड़ा है, और जनाब खालिद इब्न वलीद को रब ने जीत दी है। तो पीछे चीज क्या है, उसी हवाले से कह रहा था कि जनाब ये अगर शहादत का मुतमन्नी बने तो ऐसा, साथ से सदाकत का अमी भी है, ये झूठ का शौकीन भी है। सारा दिन इसे झूठ बुलवाओ, कसमें उठा के झूठ बोलेगा, बाजी अल्लाह दी कसमें इन्हें दी मेरी खरीद भी नहीं, बाजी बाजी करके, भाई भाई करके, मिंबर पे खड़ा होकर अल्लाह की कसम झूठ बोलेगा। आप इसको रेडी करें, रोकना बड़ा मुश्किल है। इस मिंबर पे खड़े होके कुरान सामने रख के, बल्कि यूं पकड़ के बावुजू होके सर पे रख के भी ये झूठ बुलवा देता है। मैंने बोलते देखा है, बहुत कुछ होता है। सर पे उठा के यारों ने बोला है मेरे सामने, सर जी ये विच यार भी लिखी है। सलूट करने को दिल करता है, लेकिन बात नफ्सियाती मसाइल की है। कौम उलझ गई है, फिरके बन गए हैं, ग्रोह बन गए हैं, जमातें बन गई हैं। हर बंदा दूसरे को गिराने और हराने के चक्कर में, खुद जीत के चक्कर में है। तो पहले नफ्स की अलीफा पढ़ लीजिए, थोड़ा सीखिए ना। मैंने जब तक वो कायदा नहीं पढ़ा, मुझे आगे नहीं पढ़ाया गया। मैंने इंग्लिश शुरू करी तो कहने लगे जी ए फॉर एप्पल है, यहां से शुरू करें फिर आगे बात बनेगी। बड़े तरले करे कुछ आगे पढ़ाओ, ये तो हमने आम रूटीन की चीज। कहते नहीं पहले ये सीखो। तो अपने नफ्स की अलीफा जरा सीख लें, आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। क्योंकि मैंने अगले जुमले सारे उन नफ्सियात पे चलाने हैं जो घर घर की कहानी है। बंदा ये सोचता है यार ये कैसे मुमकिन है, मैं नहीं अब जी सकता। खुदकुशियों के मुंह में जाते हुए लोगों को बुलाते हैं, यार लौट आओ, दुनिया बड़ी वसी है, लोग मर नहीं गए,
वो जी क्या करूं, 3 दिन से बच्चे भूखे हैं, कोई देने को तैयार। यार रब के वास्ते मूड़ा कोई बात नहीं, ये जलना हल नहीं है, जला देना हल नहीं है, बच्चों को मार देना हल नहीं है। अल्लाह ने दुनिया वसी रखी है, इम्तिहान है, आजमाइश है। मौत जब रब दे तो फिर है, अपने हाथ से नहीं, क्योंकि रब की अमानत है और अमानत जिंदगी है, इसको अपनी मर्जी से अपने हाथ में नहीं लेना। पकड़ होगी। यहां तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। लोग लौटते हैं, अल्लाह ताला रास्ते निकाल देता है, अल्लाह ताला रास्ते निकालता है। मेरा रब शहद है इसी मस्जिद के मिंबर से, पता चला 4 बच्चों के साथ खुदकुशी के लिए, ये आपके करीब की नहर। अल्हम्दुलिल्लाह जुमे के बाद खबर मिलती है, असर तक मामले को हैंडल करने की कोशिश करते हैं, घर के सारे अफराद फेल हो चुके हैं, रब ने दिल में बात डाली है। आज माशाल्लाह अपने घरों में शादियां भी हैं, आबादियां भी हैं, रब की रहमत भी है। और हमारे उस सिलसिले का जो एक तावन था वो जाता रहा, करता रहा। अल्लाह जजा दे मेरे उन दोस्त अहबाब को कि जिन्होंने मोहब्बत से कुछ कार्ड लगाए, कुछ राशन, उनके घर चला जाता है, दुआएं निकलती हैं। तो मुश्किल नहीं है, कवर हो सकता है, लेकिन समझाने की बात है। मैं इसको अगर ज़ुआद में देखूं तो ये ज़ईफ और नातवां भी बहुत है, और अगर इसको दूसरे एतबार से देखूं तो ये बड़ा अड़ियल कड़ियल नशीला जवान भी है। मैं अगर इसमें देखूं ज़मीर का बहरान भी है, हकीकत का सामान भी है। मैं मजीद आगे बढ़ूं, ये ताऊस सी निफासत भी रखता है, ताऊस मोर जैसी, और गिद्ध जैसी निजासत भी रखता है। हराम खा के सारा दिन हराम में मुंह मार के, और ताऊस उसकी नफासत। मैं इसको ज़ा से देखता हूं तो ज़ाहिरन सांप भी है, बातन में कोबरे सा जहरीला इसके अंदर पन भी है। मैं ऐन में जाऊं तो ये अय्यारो मक्कार भी है, जाहिद और परहेजगार भी है। बनाइए आपने इसे कहां पे लाना है। मैं मजीद इसको अगर करीब से होके देखता हूं, ये इज्जतों का पासबान भी है, ये बदकारियों का दलाल भी है। मैं अगर गैर में चला जाऊं, ये गैरतों से मामूर भी है, ये बेहयाई में पुरसरूर भी है। काफ में चला जाऊं, काबिल जैसा कातिल भी है और हाबील जैसा साबिर भी। चलिए देखिए, चेक करें ना, सामान दोनों तरह का है, मेरे पास है, मैंने इसे फिक्स करना है। काफ में आऊं तो कछुए सा सुस्त भी है, मछली जैसा चुस्त भी है। गाफ में चले जाऊं तो गधे जैसी इसमें अकड़ भी है, और शुतर जैसी आजिजी भी है। कितना बड़ा है ऊंट, नाक में नकेल डाल के एक बच्चे के हाथ में थमा दो, उसे कहो होश, सिर्फ इतना बोलिए। सर जी बैठेगा भी, अगर आप सिर्फ गर्दन कहें तो सर नीचे रखेगा, आप उसके सर पे पांव रख के चढ़ जाएं, ये लिफ्ट की तरह गर्दन ऊपर उठा के करेन की तरह आपको अपने ऊपर सवार भी कर देगा। आजिजी है तो ऐसी, अकड़ है तो गधे जैसी। लाम को देखूं तो लोहे सा सख्त भी, मक्खन मिजाज भी। अगर मीम में चला जाऊं, मोहब्बतों का सर चश्मा भी यही, नफरतों का मंबा भी यही। नून में आऊं तो नमरूद सा मुनाजिर और मुतकब्बर भी, इब्राहिम जैसा मुती और फरमाबरदार भी। वाव में चला जाऊं तो वाह हयातियों का गुलाम भी, तहजीबों का इमाम भी, वफादार भी, दगादार भी। हा में जाऊं तो हिम्मत का पासदार भी, बुज़दिलों का सरदार भी, बहादुरी भी है, सारा कुछ है। और अगर हमजे में जाऊं तो सैयदुना हमजा जैसा सैयदुश शुहदा भी है, ये अबू लहब जैसा घटिया मुर्दार भी है। नफ्स ही है ना, दोनों नबी के चचा हैं, इधर भी नफ्स है, इधर भी नफ्स है। ये भी कुरैशी है, ये भी कुरैशी है, ये भी मेरे पैगंबर की असल है, ये भी असल है। लेकिन फिक्सिंग है कि कहां की गई। या में आऊं तो यकीन कामिल का मरकज भी है, और ये शुबहात की दलदल भी है। यूसुफ जैसा हसीन भी है, इबलीस जैसा लईन भी है। सर अब आइए जरा, ये मैंने बिला मकसद ये जुमले इकट्ठे नहीं किए। मैंने जब कुरान मजीद को खोल के देखा है तो इस नफ्स ने जहां हमें हिला के रखा है, आज उस हवाले से सिर्फ एक सूरत, आने वाले मौजूआत में एक एक प्रॉब्लम, नफ्सियाती मसाइल, और चारों तरफ उनके तज़किरे। हर बंदा जो है, हकीम बैठा है, तबीब बैठा है, डॉक्टर बैठे हैं। मैं नब्ज पकड़ा के पूछता हूं, टेंशन तो नहीं लेंदे? मैं कहा भाजी तो बहुत लई दी, बस कोई बीमारी नहीं है तो टेंशन। हार्ट पर डिप्रेशन में तो नहीं है? जाहिर है जी, केड़ा बंदा जड़ा डिप्रेशन, यानी हर चीज के पीछे यही नफ्सियाती मामले खड़े कर दिए। लॉजिक क्या है? नफ्सियाती मसला है। तो मेरे भाई, नफ्सियाती मसला कुछ ऐसा नहीं है, कुरान हल रखता है। जरा पढ़िए थोड़ा सा। अल्लाह कहते हैं तू ठीक कर अपने नफ्स को,
अच्छे पॉइंट पे लेके आ, करना तूने, मैंने दे दिया, इख्तियार तुझको दे दिया है। कल को ये ना कहना मजबूर हूं, तकदीर के बहाने ना बनाना। सबसे बड़ा नफ्सियाती मसला है कि बंदे को ये ज़हन में डाल दिया गया यार असी तो मजबूर हां। मजबूर पता है किस चीज में? आप अपनी बिरादरी नहीं बदल सकते। बिरादरी कौन सी होती है? जो अब्बू वाली कौम है। लेकिन मैंने देखा है बड़े सारे लोग अब्बा बदल के फिर रहे हैं। मैंने बच्चों को कई दफा कहा कि पेरेंट्स को लेके आना, अब्बू को लेके आना। अगले दिन लेके आया, मैंने पूछा आपका बेटा है? जी मेरा बेटा है। क्या नाम है? जी माशाल्लाह। ये कितने हैं? जी। चेहरा बता रहा था, मामला गड़बड़ है। मैंने फिर पूछ लिया परेशान क्यों है? आप फर्स्ट टाइम आए हैं, जरा रिलैक्स हूं, बैठे, मैंने जरा बात करनी। मैंने कहा जी माशाल्लाह। ये कौन से नंबर पे है? बाप का बयान हो रहा है, बेटे का हो रहा है। अब काफी सारे मसलों में मीटिंग करके नहीं आए थे, अपने अब्बे को बताया नहीं, हम तो अब्बा बदल लेते हैं। कैसा मजबूर है? बिरादरियां नहीं बदली हुई। लिखा है कि बर्रे सगीर में जितने सैयद और सादात और शाह बन के बैठे हैं, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, मेरी नजरों के सामने दुनिया ने अपनी कौमें बदली। कैसे मजबूर हो तुम? कैसे मजबूर हो? होंठ नहीं बदल ली, अल्लाह की तखलीक चेंज नहीं करी, नाक मोटे से पतला, पतले से मोटे नहीं कर लिए, डेले बड़े नहीं कर लिए, जुबान दो शाखा नहीं कर ली, तूने कान में 4-4, 5-5 सुराख नहीं कर लिए, तूने बालों की विगे लगा के पता नहीं क्या क्या नहीं कर लिया। कहां तक चलूं, कहां तक चलोगे? कहां तक सुनाऊं, कहां तक सुनोगे? मजबूर है तुम। ये सिर्फ दीन में हड हराम ते हुज्जतां ढेर, ऐसी बात नहीं। अल्लाह कहते हैं तू मेरा बन के आ, दुनिया के लिए मुफीद बन के आ, फायदा मंद बन के आ। हम क्या करेंगे? इन्नल अबरार यशरबून मिन कासिन काना मिजाजुहा काफूरा। जाओ पूरी दुनिया में घूम के काफूर का कहीं से मशरूब पिला के दिखाओ मुझे। आपको काफूर देंगे मरने वाले पे जो छिड़का जाता है, पी के दिखाएंगे मुझे ये काफूर। लेकिन वो जन्नत का काफूर आंखों ने देखा नहीं, कानों ने सिर्फ नाम सुना है, मुशाबा पड़ रहा है, लेकिन दिल के अंदर कोई ऐसा तसव्वुर भी नहीं आया होगा जितना रब ने टेस्ट उसमें रखा है। अल्लाह ताला ये कहने के बाद कहते हैं ऐना, चश्मे। चश्मे, आप में से बड़े सारे लोगों ने चश्मे देखे होंगे, चश्मे फलक से। लेकिन क्या मजाल है कि इस आंख ने पूरी कायनात देख ली है, वो जन्नत को तसव्वुर में लाकर के उसका चश्मा देख सकी हो। यशरबु बिहा इबादुल्लाह, मैं अपने मुती फरमा बरदारों को पिलाऊंगा। युफज्जिरूनहा तफजीरा, बहते जाएंगे, चलते जाएंगे, बहाते जाएंगे। पानियों में आपने देखा नहीं है, गर्मियों के अंदर आकर के ऊपर पानी धकेलता है तो कहां का कहां ले जाता है। अल्लाह कहते हैं नाले पी, नाले नहा, नाले जी, नाले मौज कर, नाले ठंडा हो, नाले दुनिया की वो सारी जो है महरूमियां लेके आया वो ले। यूफून बिन नजरी, काम क्या करते थे इन्होंने? जो नजर मान ली थी ना, नजर क्या है मानते हैं ना, नजर न्याज। नजर ये थी कि मैंने ये काम करना ही करना है। अल्लाह अगर मेरा काम टुर पिया ना, अद्धे पैसे तेरे ते अद्धे मेरे। कल मुझे मैसेज आया, असी जी अल्लाह नाल कारोबार कीता सी ते कम माशाल्लाह टुर पिया। असी ये सोचा सी भी डेली 100 नफल पढ़िया करांगे, वो तो पढ़ नहीं हुंदा, हुण काम इन्ना हो गया है। वो तो एक मौलवी साहब ने कहा जी कोई मसला नहीं, ओके नफल ने। बाकी 50% अल्लाह नाल वादा कीता सी। यार हुण टैक्स भी बड़े ने, बिजली के बिल भी बड़े ने, ये नहीं कि आमदन थोड़ी, लेकिन अब ना अंदर कुछ होता है 50% देते हुए। क्या ख्याल है? अल्लाह कहते नहीं, ये ऐसे नहीं थे। यूफून बिन नज़र, हमने इन पे फर्ज नहीं किया, अगर अपने पे किया है तो फिर इसको मनाया है। वह यखाफून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा, ये उस शर से डरते हैं जो कयामत के दिन फैला हुआ होगा और चारों तरफ से जकड़ा होगा। ये दुनिया में सहम के आए, डर के आए, मान के आए, मेरे बन के आए। वह युतइमून अत्तामा, सुनिए जरा, वह युतइमून अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, ये खाना खिलाते थे दिल से, दिल से। भाजी अज भी खाणियां दे दस्तरखान बड़े लगे ने, दिल दियां रब जाने। लेकिन अक्सर जहां सेल्फी चल रही है ना, कई दफा जाते हैं खाना खिलाते हैं, एक आज ही जरा से भाजी कोई अफतारी दे तस्वीर भेज के बाहरों पैसे मंगाने जे, नहीं 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 सर, फिर क्यों?
وہ بس جی پھر ہوتا ہے نا، آپ کو پتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، انہوں نے کوئی سیلفی نہیں بنائی اور ماتھے پہ بال ڈال کے نہیں، اتنے پیار سے کھانا کھلاتے ہیں مسافروں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو۔ یہ اگر پیار دیکھنا ہے تو میرے ساتھ رمضان میں کبھی مدینے چلیے، میں مکہ بھی نہیں کہتا، میرے ساتھ مدینے چلیے ایک دفعہ، اللہ لے کے جائے، تصور کی دنیا سے حقیقت کی دنیا میں آئے۔ 4 منزلہ نیچے آپ واش روم سے بیت الخلا سے ابھی نکلیں گے نہیں، آپ کے پیچھے چھوٹا سا ایک سایہ ہوگا، آپ نے جب وضو کر لیا وہ سایہ آپ کے پیچھے کھڑا ہے، اور اتنا پیارا سا پھول شاید آپ کے گھر میں بھی نہ ہو، اٹھتے ہی آپ نے ابھی جوتا پہنا ہے تو آپ کا یوں انگوٹھا پکڑے گا اور کہے گا تعال یا عم، تعال یا عم، چچا جان، اسے تیری بولی نہیں آتی، تیرا نام نہیں آتا، لیکن تو مسافر ہے، تو اجنبی ہے، باہر سے آیا ہے، تعال فطر معنا، آج روزہ ہمارے دسترخوان پہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھولنا ہے۔ یہ بچہ لا کے چھوڑے گا، اور پتہ ہے کتنے بڑے لیول کا وہ آدمی ہے، شاید اس کے گھر میں 10 نوکر ہوں، لیکن نوکریاں کر کے چیزیں پکڑ پکڑ کے، جناب یہ لیجئے، یہ پکڑیے، لیجئے نا، آپ کھائیں نا، بسم اللہ، اللہ تفضل، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ہم پلہ لوگوں کو برابر کے سٹیٹس والوں کو تو سب کھلا لیتے ہیں، ہوٹلوں میں بلا کے بڑی بڑی اچھی ماشاءاللہ پارٹیاں ہوتی ہیں، بوفے ہوتے ہیں، لیکن یتیموں، مسکینوں، غریبوں کو لے کر کے کوئی ایسے کرے تو یہ وہ لوگ تھے، انہوں نے چنا رستہ خود تھا، اور کھلا کے کیا کہتے تھے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ ہم نے تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلایا ہے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نہ اس کے بدلے میں کوئی کام لینا چاہتے ہیں نہ کچھ اور، بلکہ ہم تو اتنا بھی نہیں کہنا چاہتے کہ جاتے جاتے جزاک اللہ کہہ جاؤ، ہم آپ سے جزا اور شکریہ کا مطالبہ نہیں کرتے۔ بھئی کیوں کھلا رہے ہو؟ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، قیامت کے دن جب پیاس سے چہروں کے رنگ پھک ہو جائیں گے، پپڑیاں جم جائیں گی، جب ہونٹ سلے ہوئے ہوں گے، اور جب پریشانی پہ پریشانی گھیرے ہوئے ہوگی، فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا۔ انہوں نے اپنے نفس کو جہاں فکس کیا تھا نا، غریبوں سے جوڑ کے، مسکینوں کو ان کی حاجت اور ضرورت، اور اس کے ساتھ جڑے اور ڈٹے رہے، اللہ کہتے ہیں جب سب کے چہروں کے اوپر عبوس، نا امیدیاں، رنگ پھٹ، کالے سیاہ چہرے ہوں گے، ہم ان کو ایسی ایسی تر و تازگی اور خوشیاں دیں گے اور سرور دیں گے۔ یہ صرف اس فطور کا نتیجہ ہے جس فطور سے نکل کر کے انہوں نے غریبوں سے خود کو جوڑا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، ابھی ان کی جزائیں صبر کی اور بھی ہیں، جنتوں و حریرا، یہ جنتیں ہیں، یہ ریشم ہے، متکئین فیہا علی الارائک، دنیا میں تماش بینوں کو دیکھا گیا ہے کہ تکیے لگا کے، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے بڑے مزے کے ساتھ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہی تھا نا، ان بیچاروں کو تکیے نہیں ملے تھے، ہر آنے والے خطیب نے کیا ہوں گوڈے چڑھ کے بہو، ویسے میں نے کبھی نہیں کہا آپ لوگوں کو، جیسے ہوں، ریلیکس ہوں، ایزی ہوں۔ کل ایک بچہ ملا کہنے لگا دوسرے کی تکلیف کا جب تک خود کو پتہ نہ ہو تو پتہ نہیں چلتا، میں سمجھتا تھا جو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھتا ہے متکبر آدمی ہے۔ کہتے آج مجھے پتا چلا کہ میرے پیٹ پہ پھوڑا نکلا ہوا ہے تو مجھے ٹانگ رکھ کے سائیڈ پہ ہو کے بیٹھنا پڑتا ہے۔ یہ اور بھی معاملات ہوتے ہیں، فوری کسی کے بارے میں زہری نظر رکھ کے یہ ایسا ہے، یہ متکبر ہے، یہ بگڑا ہوا ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، آؤ یہ جنتیں، آؤ یہ تکیے، یہ لگے ہوئے ریشمی، آؤ لگاؤ ٹیکیں، لا یرون فیہا الشمس ولا زمہریرا، جو اندر بیٹھے ہیں ماحول اور ہے، جو برآمدے میں ماحول اور ہے، جو باہر کہیں آگے اوپر کپڑا لگا ہوا ہے ماحول اور ہے، جو دھوپ میں۔ اللہ کہتے ہیں ایسی جنتیں ہوں گی جہاں گرمی بھی نہیں ہے اور سردی بھی نہیں ہے۔ کیسا موسم ہے؟ معتدل، اعتدال، نہ سردی اتنی کہ کمبل لینے پڑے، نہ گرمی اتنی کہ اے سی چلانے پڑے۔ ہم نے ماحول ایسا دینا ہے، وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَظُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَظْلِيلًا۔ دکھاؤ مجھے یہاں ٹینشن کتنی ہے، لیکن جنہوں نے دنیا میں ٹینشن لی تھی، ٹینشنیں تو ویسے بھی آتی ہیں، دنیا کے لیے مر رہا ہے، بھاگ رہا ہے، جھاگ رہا ہے۔ تہجد سے پہلے ٹائم میں نے ڈیلی اپنی سڑک کے اوپر چھن چھن کی آواز
रेसों की आवाज, गधों के दौड़ने की आवाज और उनको भगाने के जुमले। सड़क पे आ गया, रुक गया, मैं मोटरवे से उतरा और माशाल्लाह हूं कहां पे, कहां है धनोला, रेड़ियां टापो टाप थे, बंदे बोरियां भर के। वो भाई आप कहां जा रहे हैं इस टाइम? पाजी मंडी चले, ये मंडी टाइम है। कितने किलोमीटर है जी? 8-9 किलोमीटर यहां से घंटा घर है, फिर आगे 12 किलोमीटर है, 18-20 किलोमीटर करके तहज्जुद से पहले उठ के तू एक सब्जी करेले बताऊं लैंड टुर गए हैं। ते जेड़ी उस टाइम जन्नत रखी सी उसके लिए आंख नहीं खुलती, उसके लिए नहीं खुलती, खुलवा सकता था, लेकिन अल्लाह कहते हैं हाँ हाँ आज हमने ऑटो सिस्टम कर दिए हैं, यहां बैरे लाने पड़ते हैं, हम वो भी रखेंगे, लेकिन तू जो सोचेगा दानियतन अलैहिम ज़िलालुहा, दरख्तों की शाखें झुकी हुई, प्यार करने वाले जोड़े ऐसा माहौल जरूर ढूंढते हैं। बाग हो, दरख्त हो, शाखें झुकी हुई हो, पानी बह रहा हो, कोई ना देखने वाला हो, धुंध हो, बर्फबारी हो, एक तू हो एक मैं हुआ, दुनिया का कोई और जी ना होवे, चल चलिए दुनिया दी उस नुकरे जिथे बंदा ना बंदे। अल्लाह कहते तेरे उस माहौल को कोई देखना भी चाहे तो देख नहीं सकेगा, साइड डाल दिए गए हैं। वह दुल्लत कुतूफुहा तदलीला, शाखें फल झुका दिए गए हैं। वह युताफु अलैहिम बिआनियतिन मिन फिद्दतिन व अकवाबिन कानत कवारीरा, ऐसी चांदी देखी है जो क्रिस्टल की तरह और शीशे की तरह आबगीनों में चमक दमक वाली। अल्लाह कहते हैं ऐसे थाल होंगे, उनमें लगे हुए जाम होंगे, और कवारीर मिन फिद्दतिन कद्दरूहा तकदीरा, जो सोचा जा सकता है वो मिल जाएगा। वो युस्कौन फीहा कासा, आब खोरे होंगे, काना मिजाजुहा ज़ंजबीला, अदरक की मिजाज होंगे। शायद इस आयत को देख के किसी ने जुमला बनाया था, बांदर की जाने अदरक दा सवाब। ये दिल वाले समझते हैं अदरक क्या होता है, ये जवान समझते हैं अदरक क्या होता है, या हकीम की हिकमत को पता होता है अदरक क्या होता है, या माओं को इल्म होता है कि वो हर हंडिया में क्यों डालती हैं। मैंने एक दिन पूछ लिया, माँ जी हर हांडी च धनिया क्यों पाते? कहते पुत एक तो शक्ल चंगी, दूजा फ्लेवर, एक खुशबू, एक चौथी चीज भी है, वो तेन हाले नहीं दसना, बड़े होकर तेन आपे पता लग जाए। अल्लाह कहते हैं तुम्हें पता लगेगा। जंजबील के कावे पीने वालों, ताकत की पुड़ियां खाने वालों, आओ आइनन फीहा तुसम्मा सलसबीला। सलसबील के कभी जूस चलते थे, वो 10, 5, 3, 8 रुपए का, और पता नहीं अंदर क्या टाटरी भरी होती थी। अल्लाह कहते हैं जन्नत में सलसबील के चश्मे चलाऊंगा, व यतूफु अलैहिम विल्दानुम मुखल्लदून, उनके ऊपर सदा, आप यकीन करें पूरे घर में जो मर्जी मेरे लिए कोई ले आए वो मजा नहीं, जो छोटी सी पंखड़ी गुलाब की और छोटा सा काका इब्तदाई मौसम हो, और कूले कूले नरम नरम हाथ हों, प्यारे प्यारे गाल हों, हाथ में छोटा सा थाल हो, और बाप के लिए पहले कोई डिश या मशरूब या चाय लेके आए ना, जो मजा वो है ये तेरे इस दुनिया से गए हुए, रुखसत हुए हुए रब तुझे वहां जन्नत में मिलवाएगा। और जिनके माँ बाप फौत हो गए वो जन्नत में नहीं आ सके, ये तुझे दिलवा करके रब तेरे साथ जोड़ करके दाएं बाएं आगे पीछे घूमने वाले विल्दानुम मुखल्लदून इदा राइतहुम हसिबतहुम लुलुअ मंसूरा, तेरी नजर पड़ेगी तो कहेगा यार मोती लोलो बिखरे हुए यहां वहां। व इदा राइत थम्मा राइत नईमम व मुल्कन कबीरा, तुझे वो अलग सी बादशाहत नजर आएगी, नेमतें होंगी। आलियहुम सियाब सुंदुस खुदरुम व इस्तबरक, आप और मैं कितने अपने अपने हिसाब से चुन के कपड़े ले सी ना ईद, तो मैं वेंदा रहा किसी का भी कोई एडी चास साला कोई नहीं सी, हर बंदा समझदा सी मेरा दूजे तो चंगा, दूजे ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ नहीं यार ये तो बहुत चंगा। अल्लाह कहते जन्नत में मैंने तुम्हें जो रेशम पहनाना है ना, इतना बारीक। आपने अरब लोगों को देखा है, थल्ले जुब्बा मोटा, ऊपर जो अपर लेते हैं ना बड़ा बारीक सा, उसके अंदर से वो कपड़े मोटे नजर आ रहे होते हैं। जो उन्होंने जुब्बा पहना होता है भाई, ब्लैक ऊपर लिया है या ब्राउन लिया है, अल्लाह कहेंगे ऊपर हुल्ले और जुब्बे बारीक रेशम के, और अंदर तुम्हारे हिसाब से रेशम के मोटे कपड़े, और उसका जो है सी ग्रीन या सब्ज कलर। वह हुल्लू असाविर मिन फिद्दा, दुनिया में मुर्शिद के कहने पे तूने हाथ में कंगन नहीं पहना, कयामत के दिन चांदी के कंगन न पहनाऊं तो रब न कहना। वह सकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, दुनिया में तूने मेरे भेजे हुए महबूब मुर्शिद और पैगंबर के कहने पे शराब नहीं पी, जन्नत में पाकीज़ा शराब न पिलाऊं तो रब न कहना। तू सोच के तो आ क्या बदबूदार पीता है, जिन्हों पुलिस वाला भी सुन के अच्छा कोई बदबू नहीं, कोई स्मेल नहीं, कोई गंदगी नहीं, कोई गिलाजत नहीं, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, कोई वाह वेला नहीं,
کوئی للکار پکار نہیں، کوئی یلغار نہیں، کوئی فضولیات و لغویات نہیں۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا۔ انسان تو نے نفس کو جہاں فٹ کیا تھا میں نے راہ دکھائی تھی، تو نے جنت والی مطیع بننے والی فرما برداروں والا رستہ چنا ہے، ہم نے تیرے شکریہ کا حق ادا کر دیا ہے۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا۔ قرآن تو دونوں پہ اترا تھا، تو نے مان لیا، تو نے اس کی قدر کی، ہم تیرے قدردان بن گئے۔ فاصبر لحکم ربک، ویٹ کرو، ولا تطع منہم آثما او کفورا۔ یہ دنیا کے مال کے پیچھے، یہ کھانے پینے والے، یہ دنیا داری میں مست ہاتھی بن کے جینے والے، ان کی زہری بود و باش پہ نہ جاؤ۔ وذکر اسم ربک بکرۃ و اصیلا۔ ان کے محلات دیکھ کے، کوٹھیاں دیکھ کے، دولتیں دیکھ کے، کاریں دیکھ کے، ان کی فراوانیاں دیکھ کے اور عیاشی کے سامان دیکھ کے بس اتنا کہہ دیا کرو، اللہ دن بھی تیری رات بھی تیری، کدی ساڈے بھی تو دن چنگے آن گے، کدی ساڈے بھی تو دن۔ یہی کہا ہے قرآن نے، یہی سکھایا ہے نفس کو۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ۔ تیرے گھر میں آج چولہا نہیں جلا، گیس نہیں آئی، روٹی نہیں پکی، اللہ کہتے تو میرے مصلے پہ آ رات کو، وَسَبِّحُ لَيْلًا طَوِيلًا۔ میرا شکوہ نہیں کر، شکر کر کے کہے اللہ میں تیرے اس حال تے رکھ کے راضی ہیں تو میں تاں بھی راضی ہوں۔ ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، یہ جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا، ان کو فوری نیٹ کیش چاہیے۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا۔ ان کو نہیں پتا کہ قیامت کا دن ایک دن 50,000 سال کا کتنا بھاری ہے۔ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا عَسْرَهُمْ، ہم نے ان کو پیدا کیا، جوڑ ہم نے ان کے مضبوط کیے۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا۔ یہ دنیا میں آ کے مضبوط کنکریٹی محل بنا کے سمجھتے ہیں موت نہیں آئے گی، ہم نے جب بدلنا ہے بدل دینا۔ ان هذه تذکرہ، یہ یاد دہانی ہے۔ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، فمن شاء اتخذ، اب جس کی مرضی آئے وہ رب والا رستہ لے لے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم کوششیں کرو، ٹرائیاں کرو، رب کی چاہت کے ساتھ محبت کو جوڑو، تیرا رب بھی رستے ہموار کر دے گا۔ ان اللہ کان علیما حکیما، تیرے رب کو سارا علم، ساری حکمتیں ہیں۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، رحمتیں بھی دیتا ہے۔ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، لیکن جو ظالم ہو اس کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ حضرات آئیے، میں نے یہ ساری تفصیل سورہ دہر، زمانہ، وقت، اوقات، انسان، نفس، اس کے دونوں پہلو آج تمہید میں کیوں رکھے؟ اگر فاؤنڈیشن مضبوط نہ ہو تو آگے بلڈنگ اچھی نہیں بنتی، آگے مسائل ہی مسائل آنے ہیں، وسائل بھی ہیں، لیکن میں چننے کو تیار ہی نہیں، میں سمجھنے کو تیار نہیں، میں خود کو بدلنے کو تیار نہیں۔ الزام دنیا کو دے رہا ہوں، حالانکہ غلطیاں مجھ میں ہیں، اصلاح مجھے اپنی کرنی چاہیے تھی۔ میں نے ذمہ دار باپ کو ٹھہرا دیا، کہیں الزام بیوی پہ ہے، کہیں ساس پہ ہے، کہیں سسر پہ ہے، کہیں سالہ نامزد ہے، کہیں بہنوئی نامزد ہے، کہیں جو ہے وہ میرا ہمسایا، وہ غلط ہے۔ میں اپنے آپ کو ان نفسیاتی مسائل میں جو ڈالے ہوئے ہوں کب نکالوں گا؟ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا۔ بالترتیب قرآن مجید نے جو جو انسانی مسائل نفسیات کے ساتھ جوڑے ہیں، اس کا طریقہ واردات کیا ہے اور علاج کیا ہے، انشاءاللہ اگلی ملاقاتوں میں ہم مرشد کی سیرت کے تحت پڑھیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے وجود میں جھانک کر کے اچھے اور برے کا امتیاز عطا کر دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، حسن اتفاق سے سوال ایسا ہے کہ جس کا تعلق ہماری نفسیات کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ دو سوال بہت زیادہ آتے ہیں، جناب بڑا ہی عرصہ ہو گیا منگنی نہیں ہو رہی، میری عمر 49 سال ہو گئی ہے، کوئی رشتہ ہی نہیں آ رہا۔ معذرت کے ساتھ رشتے بڑے آئے تھے، لیکن اس وقت میرٹ بڑا جوان تھا، بڑا طاقتور تھا، لمبی لسٹ تھی، 100 خوبیاں ہوں میری بیوی میں، میرے ہونے والا شوہر اس کے اندر 100 خوبیاں ہوں۔ ہر سال کے ساتھ آہستہ آہستہ 50 پہ آ کے اب آخری میں پوچھا جی اب کیا شرط ہے؟ کہندے جی ہوں بس سال ہندی ہوئے، اگر آپ اور میں یہ نہیں کرتے تو مجھے اللہ نے رشتے بھیجے ہوتے ہیں، گھر آتے ہیں، میرے پاس کالج بھرے ہوئے ہیں، لڑکوں کے مدرسے بڑے ہوئے ہیں، بیٹیاں والے نو جی کو منڈا ہی لب دو، بھاجی منڈے تو بہت نے،
نہیں یار جداں دا اسی چاہنے ادا دے نہیں. تو پھر جب آپ نے میرٹ رکھا ہوا ہے تو میرٹ پہ تو پھر جو کو پورا اترے گا. ٹھیک ہے, آپ نے اللہ نے تو 2 ہی شرطیں رکھی تھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا من استطاع منکم الباء فلیتزوج, جیڑا گھر والوں نو سانبھ لوے ڈگ دے نو ہاتھ پھڑ لوے, روٹی پاویں انہوں بھی لبے نہ لبے, جسمانی ضرورت روٹی سے زیادہ مہنگی ہوتی ہے. نسل کی اللہ نے چاہت کہیں زیادہ رکھی ہے. نسل کے لیے بندہ بھوکا نہیں مر جاتا, دھوپ میں نہیں کھڑا ہوتا. تو اس نفسیاتی مسئلے کا حل ایک ہی ہے, صبر کرو ہو جائے گی. پہلے شرطاں بہتیاں نہ رکھو. ٹھیک ہے جی اللہ کی سپرد آ گیا, بسم اللہ کر دیں جی. وہ ویلے کڈے چنگے سی جدو ایک گھر دا وڈیرا پت آ تیری بیٹی جوان ہو گئی ہے جی, ہوگی تیرا پتر ٹھیک ہے, پوتے نہ دے پے اوکے جی نسبت, کوئی بولنے والا ہی نہیں ہوتا تھا. ہوں ماشاء اللہ ابا جی تسی چپ رہو, دادا جی آپ خاموش رہیں, نانا ابو آپ نے نہیں بولنا, چاچا جی اج تے آئے جے دوبارہ رشتہ لے کے نہ آئے, اسی نہیں اپنے چ کرنا. رشتہ بڑا خوبصورت ہے جو نہیں پڑھا ہوا نہیں ہے, پی ایچ ڈی نے اتنے کی کرنا ہوتا ہے. جب ہم نے میرٹ اور معیار بنائے ہیں تو مسئلے ہیں. ایک اور مسئلہ, پہلے بھی منگنی ہوئی تھی ٹوٹ گئی, دوسری بار ہوئی ٹوٹ گئی. ٹوٹنے کے لیے ہم نے ماشاءاللہ اوزار ہی گھر میں اتنے رکھے ہوئے ہیں. منگنی ہوئی فوری بعد نمبر تو لے دو کڑی دا جی, ہاں ٹھیک ہے جی تو نسبت ہو گئی, اللہ دی سپردال ہو جی. بس ماشاءاللہ جو باتیں بعد میں کرنی تھی وہ ساری پہلے کر لی. اب جھگڑے لڑائیاں, بیانات میں تضاد, کل کچھ اور بیان تھا آج کچھ اور ہے, اسی پہ تو منگنیاں بار بار ٹوٹنی ہے. کئی مسائل کئی وہ نہیں جی کسی نے تویز کیتا. جب پوری قوم ہی جادو ٹونے پہ آئی ہوئی ہے تو پھر کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. جب حسد ہے, شریکہ ہے, ایک وقت تھا ایک بچہ منگنی کرتا تھا, پورا گاؤں کہتا تھا ساڈا جوائی جے, تے ہن ماشاءاللہ گھر والے بھی کہندے نے پتہ نہیں کی کہندے تواڈے ال جوائی نو, ساڈے ال تا نہ ہی پیڑا جا لیندے نے. تو پھر منگنیاں ٹوٹنی ہیں. جب سوچ ہی یہ بنی ہوئی ہے تو اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو, ان پریشانیوں سے نکالے, اور ہم بھی کچھ سوچیں. میرا رب میرے وطن عزیز کی حفاظت کرے, آسانیاں فرمائے. میرا رب بیماروں کو شفا دے. جن بزرگوں کو بدستور دیکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے ساتھ کھڑا کرے, کرسیوں سے ان کی جان چھڑائے. اللہ تعالیٰ رحمتوں کا نزول کرے. میرے مالک سے دعا ہے کہ اللہ جہاں جہاں بھی پریشانیاں دکھ ہیں وہ ختم فرما. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.